Tasya Gyananjana Shalakaya Chaksurumilitam Yena Tasmai Sri Gurave Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhurvyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namo Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaura Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare. Allereerst wil ik mijn ongelimiteerde nederige getuiging aan mijn geliefde Piksha Gurudev, Om Vishnupad, Asutra Sri Srimad Bhaktivedanta Maharaj. En ook wil ik mijn ongelimiteerde nederige getuiging aan mijn geliefde Siksha Gurudev, Nitya Paramahamsa Privacharya, Patita Pavan Srila Gaura Maharaj. En ook aan mijn geliefde Param Gurudev, Nitya Paramahamsa Privacharya, Asutra Sri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Aan alle gurus in onze Rupanuga Guru-lijn, aan alle Vaishnavas, Vaishnavis en ook aan alle gerespecteerde gasten, bied ik ook mijn pranam dat jullie hier aanwezig zijn om de tweede sessie van de eerste dag van de verdiepingssessie bij te wonen, waar mijn geliefde Guruji aanwezig is om ons verder mee te nemen in het begrip wat Bhagwan Sri Krishna via de Bhagavad Gita aan iedereen probeert aan te kondigen, waarbij we werkelijk Bhagavad Dharma. We hebben net gehoord over dat we een Naimitic Dharma hebben, maar we hebben ook Bhagavad Dharma, Nitya Dharma. Hoe we intreden moeten doen in onze Sanatan Dharma. In de vorm van Bhakti, Bhakti Yoga. Hoe Bhagwan Sri Krishna aangeeft dat Sarva Dharma Parityaja Mam Ekam Sarvaraja Ham Tam Sarva Papibhyo Muksiti Masucharaja. Alle dharma opzij kan schuiven en slechts aan hem hoeft over te geven. En waarom zegt hij dat? Omdat overgave naar hem de werkelijke Sanatan Dharma is. De werkelijke Sanatan Dharma de zuiverste manier. Daarom, het is niet zo dat wij een Krishna Bhakt zijn en omdat wij Krishna Bhakt zijn, graag over Bhagwan Sri Krishna willen spreken. Wij kondigen hier de woorden van Sri Krishna zelf aan wat hij spreekt in de Bhagavad Gita. Er is een verschil. Als men iets zegt tegen jullie van zo zit het in elkaar, dan horen we ook de vragen waar staat het? In welke geschrift? Vandaag kwam een bhaiya naar me toe. Hij zegt ja, ik heb altijd films gekeken en in films wordt altijd geconcludeerd dat het Shiv Bhagwan is. Maar een film is een keuze van een regisseur, producent, die kiest om iets weer te geven. Als we kennis willen krijgen, moeten we niet alleen naar een film kijken, dan moeten we het boek openen. Ja? En als we het boek openen, dan zullen we zien hoe de correlatie en de werkelijke waarheid in elkaar zit. Een film is alleen maar een weergave van een onderdeel van iets en zelfs nog ook vaak misinterpretaties zelfs, die weergegeven worden. Zodoende, de boeken zijn belangrijk. Als iemand iets zegt, moeten we altijd, zoals een rechter, niet naar een rechtszaak kan gaan, een advocaat, en in één keer wetten gaat verzinnen. Hij moet de rechter overtuigen door het wetboek te hanteren. Het moet aansluiten. Zodoende ook, als we over spirituele kennis hebben, moeten we ook, net als een advocaat, altijd refereren naar de geschriften. Dan weten we dat we zuiver bezig zijn. Als iemand iets zegt, dat betekent ook dat diegene ook moet kunnen aantonen waar hij het vandaan heeft. Anders is het niet een goede advocaat of een goede predikant. Snap je wat ik bedoel te zeggen? Die onderscheid, daar heb ik heel veel jaren voor gedaan om enigszins begrip van te krijgen. Ik zit al meer dan 25 jaar in het proces van Bhakti Yoga. In die 25 jaar van het proces van Bhakti Yoga heb ik heel veel gurus en kangoeroes moeten leren. Die alleen maar gekomen waren om alleen maar te collecteren, maar nemen, maar eigenlijk niks geven. Klein beetje gyan, maar dat is het. Een Shri Guru is iemand die werkelijk paradukhi is. Hij ziet alle zielen hier als de kinderen van Bhagwan die aan het lijden zijn omdat ze Bhagwan vergeten zijn. En alleen al voor die agenda, van zo'n agendapunt komen ze in ons leven om ons wakker te maken. En ons te laten herinneren van kijk, zo zit het in elkaar. Bhagwan komt niet voor niets
in Bhagavad zomaar iets aankondigen. Hij kon geen leugens vertellen hier op aarde. Dat hij Bhagwan is, dat Krishna Bhagwan is, aham. Hij wijst naar zichzelf. Hij komt dat niet te zeggen dat hij hier politiek aan het drijven is. Van, oh, mijn partij is beter dan en die andere partij is slecht. Hij is geen politiek komen. Hij is werkelijk de waarheid, satyam, komen vertellen. Hoe het werkelijk in elkaar zit. Deze komende 4 dagen zullen wij heel veel onderwerpen uiteenzetten. Vandaag heb ik de recap gedaan. Een heel snel ben ik doorheen gegaan de Bhagavad Gita. De meest belangrijkste vers heb ik naar voren gehaald. Onderwerpen. Maar het geeft me nu een mogelijkheid om de komende 3 dagen om verder verdieping te doen, om nog meer begrip te tonen waarom het zo is en waarom bepaalde dingen verder uitgelegd wordt, zodat we dat kunnen begrijpen en ons te kunnen perfectioneren op het pad van Bhakti. En onder begeleiding van mijn Gurudev heb ik ook altijd deze kennis gekregen en dezelfde mogelijkheid krijgen jullie ook. Ik heb heel serieus mijn Gurudev zijn genade genomen en werk van gemaakt. Ik had een paar jaren terug, misschien 10 jaar terug, had ik nooit gedacht dat ik voor een grote publiek moest gaan spreken. Ik spreek ook in Nederland zoveel zenders. Ik had nooit gedacht. Maar door de genade van de Gurudev, daarom gezegd, Mukam Kurati Vachanam Pamuni Yati Girim Yat Kripatam Aham Vande Shri Guru Dinatari. Door de genade van Shri Guru kan iemand die niet mank loopt bergen beklimmen. Iemand die niet eens kan spreken, vloeiend spreken. Door de genade van Guru. Dat is de shakti wat bij een Gurudev is. Maar we horen zijn instructies, zijn charan, zijn overgave te worden. Hoe meer we overgeven, hoe meer we gaan zien hoe al die kennis wat in ons binnen is ons zit, al die chit wordt geopenbaard. Gyan wordt vigyan. Maar van degene die vigyan in zijn hart heeft. Daarom, ik verheug me ook om vandaag weer van mijn Gurudev over het proces te horen. En ik hoop dat jullie hetzelfde enthousiasme meedragen om dit soort kennis te krijgen van een juiste bron. Manchakalpatrosis, Kripa's in de wereld. Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Namo Mahavalannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisabhanusate Devi Pranamami Hari Priya Om Vrindavai Tulasi Devai Priyavai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavajre Namo Namaha Bhakta Vihina Aparadhalashe Shiktasya Kamaditaram Kripamai Tvam Saranam Prapanna Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna
नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का हुए चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गोविंद गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों की मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। बहुत आनंद की बात है, हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। गीता की सार हम श्रवण कर रहे हैं। सर्व वेदांत सार ही श्रीमद् भागवतम इसलिए समस्त वेद उपनिषद के सार ही कहा गया एक गीता भागवत का। ये गीता शब्द की अर्थ ही होता है गीयते त्रायते इति गीता। गीयते शब्द की अर्थ संस्कृति में, संस्कृत शब्द में गीयते माने गान करने से, कीर्तन करने से, जीव माया से जो है रक्षा करता है। त्रायते रक्षा होता है, क्योंकि संसार में सारे जीव माया की तरह मोहित हुए और माया के जो तीन गुण जो है सत्व रज और एक क्या सत्व रज तम गुण के द्वारा जीव कष्ट पा रहे। किंतु आश्चर्य की बात है जीव कष्ट भी पा रहे उसके सुख मानते हैं। हम इन संसार में कोई दुखी है, दुख मान रहे कि नहीं मान रहे? हम दुख नहीं मान रहे। यदि हम दुख मानते, दुख के दुख मानते तो सुख के लिए हम तरसते, ये कहां सुख मिले। किंतु वास्तव में सब हम दुखी है। इसलिए ब्रज में कहावत होता है, दरिद्र कहे धनी सुखी। क्या बोला? दरिद्र कहे धनी सुखी, धनी कहे महाधनी सुखी, महाधनी कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे हम भी सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं। सुखी कौन है? जो हरि के भजन करता है वही सुखी है। जो हरि के भजन करता है वही सुखी है, और बाकी सभी दुखी दुखी है। कि दुख हम अनुभव तो कर रहे हैं, किसी दुख के दुख नहीं मानते। जिस दिन हम वो दुख के हम दुखी रूप में मान लेंगे तो उस समय हम सुख के लिए प्रयास करेंगे, कहां मिले सुख। संसार के जीव उसी प्रकार इसमें भ्रमण करते जा रहे हैं, एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर। गीता में तो यही बताते जा रहे हैं। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं ये तुम शरीर नहीं हो, तुम कौन हो? आप कौन है? आत्मा है। आत्मा है क्या चीज? क्या आपने आत्मा को देखा? कितने मीटर है लंबी, कितने मीटर है? और कितने चौड़े, कितने मीटर है? आप तो अपने के बारे में जानते हैं, आप कितने लंबी हो, कितना लंबे है आप, कितने इंच है आप? 5 फुट बता रही है। 16 इंच होगा, कोई 65 होगा, अच्छा कोई 70 इंच होगा लोग। और आप चौड़े कितने हैं ये अभी पता है। जब आप कुर्ता बनाने के लिए जाते हैं ना, वो टेलर जो है
वो आपके नाप लेते हैं, आप कितने लंबे हो, कितने चौड़े हो, उसके लिए अनुसार वो कुर्ता बनाते हैं। किंतु आत्मा कितनी बड़ी है, वो कितना लंबी है और कितने चौड़े, ये आपके पता है। उसके कलर क्या है, काले है कि गोरे, ये भी काले है। वो कहाँ रहती है, कहाँ, ये भी हमें पता भी नहीं है। पता है इस शरीर में कौन सा जगह पर आत्मा रहती है, ये भी हमें पता भी नहीं, किंतु हम एक विश्वास करते हैं इस शरीर में क्या है, आत्मा है। वो क्या कर रही है आत्मा, ये भी हमें पता लगाना चाहिए। क्यों, मैंने पहली कहा था मैं इस शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं, आत्मा, आत्मा। जैसे घर में कोई व्यक्ति रह रहे हैं, आप घर नहीं हो, आप क्या है, घर में आप रह रहे हैं। देखो इंग्लिश में हम कहते हैं माई हाउस, क्या कहते हैं, माई हाउस, माई हाउस। तो हु इज आई, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। वो घर में जो रहते हैं वही रह रहे हैं, किंतु उसके बारे में हम जानते नहीं हैं। ये शरीर रूपी क्या, ये शरीर क्या है, ये घर बताया है। दिस बॉडी इज एज लाइक ए हाउस। तो इस घर में कौन रह रहे, उसके नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कहां जाती है, कहां से आती है। देखो एक कथा मैं सुनाता हूं। एक संत महात्मा थे, बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा थे। एक सभा में संत महात्मा बहुत सुंदर रूप में भगवान के बारे में बताया गया। भगवान के सुंदर रूप है, सुंदर रूप है। बरहा वीर नरवर बपु कर्ण करिकार विप्रतवासो कर्ण वैचिंत्यमालम रन्नान वेणोदर पुरेण गोपविंदोई बिंदारन सपदर्वणं प्राविशदकीर्ति। भगवान की कैसे रूप है, इतने सुंदर जो रूप है, जिनके मस्तक पर जो है, सिर पर मयूर पंखा लगे हुए, बरहा पीड़म नटवर बोपू, इतने इतने सुंदर जो है, त्रिभंग लड़ी, 3 बैंड फोल्ड, त्रिभंग बंसी बजाते हुए, सबके लचाते हुए, सबके आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे सुंदर बंसी बजा रहे, बरहा पीड़ा नटवर बोपू कर्ण कर्णिकारंग, जिनकी आंख, जिसके कान पर जाए सुंदर लाल लाल पुष्प लगे हैं, कभी इस कान में लगाते, कभी इस कान में लगाते। बरहा पीड़ा कर्ण कर्णिका विप्रतवास, ऐसे सुंदर ये लोग गारमेंट्स है लगे हैं। और वैजंती माला, 5 प्रकार पुष्पों के द्वारा, फूलों के द्वारा वो माला गुथे हुए इसके गल में लगी हुई। और सबको इतने सुंदर तिरछी नजरों के द्वारा वो नचा रहे। जब श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराने के लिए जाते हैं, गोचारण के लिए जाते हैं, ये उनके रूप वर्णन करते जाते हैं। बरहा पीड़न नटवर वपु कर्ण कर्णिकारं विप्रतवास कर्ण वैजंत्यमालम रंध्रान वेणो हृदय पुरेण गोपविंदई बिंदारन सपदरमण प्राविशदकीर्ति कीर्ति। और जो वृंदावन में जब चलते हैं, उनके चरण की छाप जो है, फुटप्रिंट्स, वृंदावन में सब धूलि में उसके अपने आप लग जाते हैं। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग वह चरण चिन्ह को देख करके, चरण छाप को देख करके, फुटप्रिंट्स को देख करके स्तुति आदि करते हैं, पूजा आदि करते हैं। चलो इसी प्रकार वो सज्जन संत महात्मा कृष्ण के सुंदर रूप वर्णन करते हैं। भाई देखो ब्रज में एक कथा आती है, बोले राम और कृष्ण एक ही है, 2 नहीं है, एक ही है राम और एक ही है कृष्ण।
कभी राम बने और कभी कृष्ण बने। ब्रज की कथाएं यही भाषा, ब्रजवास में कहते हैं कोई एक ही प्रभु कभी राम बने और कभी श्याम बने। बोले कभी जब राम बनते कैसे पता चले, और जब श्याम बने हमें कैसे पता चले? तो ब्रज लैंग्वेज में कहते हैं एक के नयन गंभीर और दूसरे के नयन चंचल। तो आप समझ जाइए ना, कौन राम है? जिसके आंख गंभीर है वो राम है, और एक के नयन चंचल अर्थात कृष्ण। चलो आगे की कथा मैं सुनाता हूं। वो संत महात्मा उसी भरी सभा में बहुत सुंदर रूप में भगवान के सुंदर रूप वर्णन करते हैं। भाई देखो कथा में तो सब लोग आते हैं। कौन लोग आते हैं? कोई विश्वास करने वाले आस्तिक भी आते हैं और कोई नास्तिक भी आते हैं। आस्तिक नास्तिक समझ में आता है? थीस्ट एंड एथिस्ट। कोई भगवान के विश्वास करते हैं, कोई नहीं विश्वास नहीं करते। कोई भगवान के रूप मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। कोई कहते हैं भगवान के रूप है ही नहीं, और उपवक्त तत्पदार्थन एवं भगवान के रूप है ही नहीं कोई। जैसे हवा है, आकाश है, रूप कहाँ है? उसी प्रकार भगवान में कोई रूप नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही व्याख्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं गॉड नेवर एग्जिस्ट। भगवान को भी तो आते ही नहीं, प्रकाश ही नहीं है, इसके बारे में क्या बोलते? चलो ये कथा सुने में तो आनंद लगता है, भगवान कैसे सुंदर रूप है। जब कोई व्यक्ति कथा भगवान कैसे सुंदर रूप वर्णन करते हैं, सुनकर तो मुझे अच्छे लगते। चलो आगे की कथा सुनाता हूं। तो सभा में ऐसे एक नास्तिक व्यक्ति था। नास्तिक समझ में आ गया? ऐसे जो भगवान को विश्वास नहीं करते। कथा समाप्त होने के बाद वो नास्तिक व्यक्ति जो है पीछे से खड़े हो गए। बोले महाराज आपने तो बहुत अच्छी कथा सुनाई, सुनने तो बहुत अच्छी लग रही। अच्छा ये बताओ, जैसे आप वर्णन किया जैसे आप कभी भगवान से मिले होंगे शायद, यदि भगवान से आप नहीं मिला तो ऐसे सुंदर कथा कैसे बताया आपने? देखो ये जो बोल रहे हैं ना वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं नहीं। कोई कोई लोग बोलते हैं ना, पहले प्रशंसा करते हैं, ग्लोरिफिकेशन ग्लोरीफाई टू यू, बट इनसाइड क्रिटिसाइज। ये समझना चाहिए। कुछ कुछ लोगों के बोलने के तरीका होता है, दिस इज द प्रोसेस। तो आइए, संत महात्मा समझ गए, अच्छी बात है। तो वो एथिस्ट अंत में ये पूछा जी आप जब आप भगवान से मिले होंगे, अच्छा ये बात बताओ, फिर दूसरी बार जब भगवान से मिलोगे तो मुझे बुला लेना। क्या बोला? संत महात्मा समझ गए ये तो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भगवान को रूप नहीं मानते। अच्छा, संत महात्मा भी कम नहीं थे। संत महात्मा को बोले ठीक है, ये बात बताओ, आपको तो मैं बुला लूंगा अथवा भगवान का आपके घर में भेज दूंगा, कौन सा आप चाहते हो? कहते बढ़िया बात है, मुझे जाना नहीं पड़े, मुझे तो काम तो बहुत है, भगवान को मेरे घर में भेज देना। क्योंकि भगवान का कोई काम थोड़ी है, वो तो मंदिर पर खड़े रहते हैं। अच्छा, भगवान मंदिर में क्या करते हैं? खड़े रहते हैं दिन रात। राम कहो, कृष्ण कहो, राम हो तो तीर धनुष लेकर खड़े रहते हैं, कोई तो काम नहीं है। अरे कृष्ण हो तो बस हाथ में ऐसे बंसी लेकर खड़े रहते हैं। काम तो नहीं, किंतु मेरा तो बहुत काम है, इसलिए महात्मा जी कृपा करके भगवान से जब मिलेंगे ना, मेरे घर में उसको भेज देना। क्या करना? मेरे घर में भेज देना। संत महात्मा बोले अच्छी बात है। अच्छा आज बताओ, आपके घर में भगवान को भेज दूंगा,
भगवान तो पूछेंगे तुम्हारे एड्रेस तो दे दो, है? हाँ हाँ महाराज लिख लीजिए, मेरा एड्रेस है, लिख लीजिए। आपका एड्रेस क्या है? चलो कोई एक एड्रेस मैं बोल देता हूँ, 17 स्टैंसन रोड है, दिस इज दे ओके, है ना? आपके घर का एड्रेस होता है ना, हाउस नंबर और रोड नंबर और फलाना वो नंबर है। जैसे मैंने कहा 17 स्टैंड स्ट्रीट रोड है, हाउस नंबर इतने। संत महात्मा कहने लगे अच्छा बताओ ये जो एड्रेस लिखा, ये एड्रेस किसका है? बोले ये एड्रेस मेरा घर का है। मैंने कहा आपके घर का तो नहीं पूछा मैंने क्या पूछा? आपका एड्रेस। क्या पूछा? अच्छा बताओ, आपको मैं पूछा आपका एड्रेस क्या है, आप क्या दोगे? आपके घर का एड्रेस दोगे नहीं दोगे? आपके घर का एड्रेस मैं पूछा, क्या पूछा? आपका एड्रेस, आपके घर का नहीं। आप तो घर नहीं है ना, आप योर एड्रेस। व्हाट इज योर एड्रेस? आपके ठिकाना क्या बताओ? व्हाट इज योर एड्रेस? वो व्यक्ति बिचने लगा, अच्छा ठीक है, दूसरी एड्रेस लिखने लगी, 86 है ब्रिस्बेन रोड। अच्छा चलो एड्रेस दे। बोले ये क्या है? मेरे ऑफिस का रोड, ऑफिस का एड्रेस है। अरे नहीं, आपका घर का एड्रेस नहीं, आपका ऑफिस का एड्रेस नहीं। क्या एड्रेस चाहिए आपका? अपना एड्रेस। माय गॉड, मेरा एड्रेस ही पता ही नहीं। देखो उत्तर दे नहीं पाया। अच्छा बता, आज बात सही है कि नहीं है? और जितने लोग आप लोग बैठे हुए हैं, मैं यदि पूछूं या आपके एड्रेस बताइए, आप कौन सा एड्रेस दोगे? आप घर का एड्रेस दोगे कि दुकान का एड्रेस दोगे कि आप ऑफिस का एड्रेस दोगे? कि तो मैं कहता हूं आपका एड्रेस क्या है? आपके घर का एड्रेस नहीं मांगा। आई डोंट आस्क यू फॉर योर हाउस एड्रेस, आई आस्क योर एड्रेस। क्यों? आप ये शरीर नहीं है, आपके शरीर के एड्रेस नहीं मैं मांगा। ये शरीर यदि घर मान लिया जाए, पहले मैं कहा ये शरीर क्या है? घर है। और इस शरीर में कौन रह रहे? आत्मा है। वही आत्मा आपसे शरीर नहीं है। आप कौन है? Who are you? You are soul. You are not this body. आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है। किंतु आत्मा के एड्रेस क्या है? कितने लोग हैं आप भी बताइए, वो कहां रहती है, क्या करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, कैसे चलती है, कैसे बोलती है, क्या करती है? बात सत्य है, यही प्रश्न होता है हमारे पास। गीता में भगवान इसी प्रश्न की उत्तर देते जा रहे हैं। इसी विषय में स्वयं गीता ही आलोचना होते जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं आत्मदर्शन। क्या बोला? आत्मदर्शन है। अपने आत्मा के बारे में आप जानो, सुनो, समझो। हमारे वेदांत दर्शन में, उपनिषद में इसी के कहते जा रहे हैं। उसके बारे में जानो, वो कौन है। ये शरीर आप नहीं है, ये तो शरीर एक घर है। घर जैसे मैं सुंदर करके बनाते हैं, बनाते हैं। घर में कितने दरवाजा होता है भाई? कितने दरवाजा है? 2 दरवाजा, कम से कम एक फ्रंट दरवाजा होता है और एक बैक दरवाजा होता है। देखो हमारे शरीर रूपी दरवाजा, शरीर में कितने दरवाजा है? ये देखो भगवान की ऐसे कुदरती है, कुदरती अंडरस्टैंड, भगवान की ऐसे कुदरती है। हमारे एक शरीर रूपी घर जो बनाया है, इसमें कितने दरवाजा है? 9 दरवाजा है। 9 doors in this house of the बॉडी। देखो शरीर रूपी घर में कितने दरवाजा बनाया? 9 दरवाजा बनाया।
आपके पता है 9 दरवाजा कहाँ कहाँ है? कितने लोग के पता है? पता है? अच्छा बताइए, आप खड़े हो जाइए, बताओ ना, हमें तो पता चले। हाँ, आपकी कथा सुनी, हमारी कथा सब तो सुनी। हाँ, आप एक एक करके गिन करके बोलो, 9 हमें बता दीजिए। हाँ बता। एक मुंह हो गया, हाँ, 2 नाक, 3 हो गया, कान हो गया, कितने हो गया? 5 हो गया, 2 आँख हो गया, 4 क्या हो गया? 5 7 हो गया, और 2 जो है पेशाब के दार और पैखाने के दार। कितना हो गया? 9 दरवाजा। अच्छा, कितने विंडोज? अब नहीं विंडोज जलाना कितने? अब लोग क्या बोलते हैं? विंडोज राम। हाँ, बहुत आनंद होता है, किसी भी परिस्थिति से राम चेक कर लेते हैं। देखो, राम नाम कहीं के नहीं आ जाता है। चलो, है हम तो जने लगाते हैं, खिड़की का कैसे कुछ भी कहो, है? अच्छा, ये कितना है? 2 अनेकों है। ये हमारे शरीर में जो जनाला है ना, जिसमें हवा आते जाते रहते है, ये हमारे जितने भी है लोमकूप कहा गया है ना, ये सब क्या है? जनाला है। इसमें भी हवा चलते रहते, पसीना निकालते। देखो, शरीर के ऐसे भगवान ने ऐसे सुंदर बनाया, भगवान की ऐसी कुदरती है। देखो, हम पानी पीते हैं और चले जाते हैं दूसरी स्थान पर। हम जो आहार भोजन करते हैं वो दूसरी स्थान पर चले जाते हैं। फिर जितना जरूरत है पानी और खाना जो खाए ना, उस पे मिक्स करके फिर हमारे और स्थान में जाकर के जितना जरूरत है वो ग्रहण कर लेते हैं, और बाकी क्या करते हैं? वो दोनों दरवाजा से वो निकाल देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी है। बात ये सत्य है कि नहीं? मैं तो साबित में बता रहा हूँ, जो बायोसाइंस के स्टूडेंट्स है ये अच्छी तरह से समझता है। देखो, भगवान कैसे कितने कुदरती है ऐसी। इसमें मैंने किसे कर, ये शरीर एक घर है, गृह है। इदं शरीरम व्याधिरं मंदिरम। ये शरीर भी, वो भी कैसे है? ये व्याधि, रोग के, बीमारी के मंदिर कहा गया, घर कहा गया, ये भी कहा गया। इदं शरीरम व्याधिरं मंदिरम। इस शरीर रूपी मंदिर में कौन निवास कर रहे हैं? बोले जितने भी रोग बीमारी रह रहे हैं। रोग बीमारी, अच्छा एक बता, किसको बीमारी नहीं है? हाथ उठाइए। अरे कोई शरीर से नहीं है तो मन से तो बीमारी हो। मेंटल वी हैव नो मेंटल प्रॉब्लम, रेट वन है। देखो, मन की भी रोग है कि नहीं है? शरीर का रोग है ही तो सबकी है। आप पहले हमारी कोई रोग नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। देखो, उसी शरीर में कौन रह रही है? आत्मा रह रही है, वही मालिक है। जैसे मैंने पहली उदाहरण दिया, ये माई हाउस कहते हैं, आई हाउस नहीं कहा जाता। क्या कहते हैं? माई हाउस। दैट मीन्स दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, आई एम द ओनर ऑफ द हाउस। इसलिए कौन रह रही घर में? मैं रह रही हूं, क्योंकि मैं कौन है? वो मैं, जिसको हम मैं कहते जा रहे हैं, आत्मा। उस आत्मा के बारे में गीता में पहले ही जो है बता रहे हैं भगवान। तो आत्मा कैसे है, क्या करती है, क्या चलती है, उसके बारे में बता रहे हैं। बहुत सुंदर रूप में गीता में ये समस्त कथा को जो बताते जा रहे हैं। गीता की शिक्षा क्या है? पहले आत्मा के बारे में जानो, या आत्मा क्या चीज है, शरीर क्या है? अच्छा, पहली फिर मैं थोड़ा आपके प्रश्न कर देता हूं। आपके घर बनाते हैं, घर किससे बनते हैं? आपका आपके घर किससे बना है?
लाकड़ी के घर बनाए। हाँ, ये तो इधर में देखा सबके घर, ज्यादातर लोगों के घर। अच्छा, बालू सीमेंट में तो बनते हैं? अच्छा, हमारे उसमें क्या, हमारे शरीर में जो घर बना है ये किस से बना हुआ है? पत्थर से, मिट्टी से है? भाई देखो, 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्व। ये शरीर बना हुआ है? कितने सुंदर शरीर, ऊपर से कितने सुंदर है। देखो, ये शरीर ऊपर से कितने सुंदर, किंतु देखो ये शरीर की गृह के अंदर में जानी क्या भरा हुआ है? क्या भरा है? मल मूत्र भरा हुआ है, खून भरा हुआ है। बात सत्य, पीठ, खून, जितने दुर्गंध वस्तु घर में रखा गया। हाँ, इसलिए तो हम भी घर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं घर में? अटैच बाथरूम बना देते हैं। अच्छा, हम घर में अटैच बाथरूम बनाते नहीं हैं? देखो, हम कहते हैं, हम गांव के रहने वाले थे, मेरा जन्म जहां पर भी देहात के रहने वाले। हम के घर में उस समय, आज से 50-60 साल बाद मैं बताता हूँ, हम लोग के घर में जो है ये नहीं बनाते थे। क्या बोले? अटैच बाथरूम नहीं बनाते थे। वो क्या, पैखाना पेशाब करने के लिए घर से कम 100 मीटर चलना पड़ता है। जो लोग, आप लोग जानते होंगे, सही है। उस समय घर में ये अटैच बाथरूम नहीं था। ये तो पहले विदेशी को देखते देखते हम भी कहते हम सब बन गए, वो भी अच्छा ठीक है ना। किंतु प्राचीन कालों की इतिहास में हम जब पढ़ते हैं, हम भी देखे हैं, ये घर से बाहर जंगल में जाकर के, बाग उधार जाकर के पाए। किंतु देखो, हमारे शरीर में उसी प्रकार कर दिया आजकल है। ये शरीर में क्या है? ये सब अटैच बाथरूम रखा है, अंदर में रखा है कि नहीं है? इसमें पेशाब भी है, पैखाना भी है, और जितने खराब वस्तु, अच्छा वस्तु तो है ही नहीं कुछ है। और वही अच्छा जो वस्तु जो है, जो दुर्गंध वस्तु जो है, वो हमारे 5 दरवाजा से कहीं कहीं वो निकलता रहता है? नाक से, कान से, आंख से, पेशाब और पायखाना से क्या वस्तु निकालता है? गंदे की वस्तु निकालता है, अच्छी वस्तु निकालता नहीं है। देखो, इसी के हम समझ नहीं पाते, और इसी शरीर में कौन रह रहे? आत्मा रह रही है, किंतु आत्मा के बारे में हम पता ही नहीं है। यही आत्मा के बारे में हम आपको सुनाते, उसके बारे में सुनो। गीता में तो यही भगवान कह रहे, तुम ये शरीर नहीं है, तुम आत्मा हो। वो आत्मा के जन्म नहीं है और मृत्यु भी नहीं है, न जायते न अमृत्यते। वो आत्मा के जन्म नहीं होती है, न उसके मरण भी नहीं, मृत्यु नहीं। और जो नित्य शाश्वत न हन्नते हन्नवाने शरीरे, उसके आग भी जला नहीं सकते हैं, वायु इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं, पानी जिसको जो है भिगो नहीं सकते। उस आत्मा के बारे में देखो, इसी कथा को हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद सुंदर एक दृष्टांत के साथ बताया। दृष्टांत सुन दे, वेरी नाइस ब्यूटीफुल स्टोरी। दृष्टांत दिया। एक बार स्वर्ग राज्य में इंद्र जी देव सभा में बैठे हुए थे। समस्त देवता लोग आनंद उत्सव मना रहे थे। मानो असुरों के पराजित करके विजय उत्सव मना रहे थे। इंद्र की पूजा हो रहा था। सब लोग क्या जय जयकार दे रहे हैं? बोलो इंद्र महाराज की जय जयकार दे रहे थे। और सब इंद्र की जय पूजा देते जाए। राजा है ना, राजा के पास सभी लोग अपने अपने उपहार गिफ्ट दे रहे थे। और इतने समय गुरुदेव
उनके गुरु कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति जब आने लगे, इंद्र तो थोड़ा बहुत विचार करने लगे, तो मेरा ये सिंहासन से नीचे उतर करके कहाँ बैठना पड़ेगा? नीचे बैठना पड़ेगा। भाई गुरु आ जाए तो गुरु के ऊंचे आसमान पर बैठाना चाहिए कि नहीं चाहिए? एक तो टिकट होता है ना, श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरु श्रेष्ठ व्यक्ति है, इसलिए गुरु को कहाँ बैठना चाहिए? बैठाना चाहिए। तो कहाँ बैठेंगे? उनके आसन पर बैठाना चाहिए, सिंहासन पर बैठा दिया। और गुरु सिंहासन पर बैठ जाए, सब लोग किसको पूजा करेंगे? गुरु की पूजा करेंगे। तो इंद्र विचार करने लगे अभी क्या करें? इंद्र जानते हुए देखते हुए पर भी गुरु के तरफ नहीं देखा। जैसे हम बहुत कुछ समझते जानते हैं, किंतु हम कुछ क्या कर देते हैं? अननोन कर देते हैं, अननोन कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, देखो ये अपराध हो गया। बृहस्पति गुरु तो सब कुछ जानते हैं, धोखा तो दे नहीं सकते हो। भाई संसार के सब धोखा दे सकते हो, दो व्यक्ति के धोखा नहीं दे सकते हो। एक भगवान और एक गुरु के आप धोखा नहीं दे सकते। गुरु समझ गए इंद्र मुझे जो अवज्ञा कर रहे, अवज्ञा डिसऑनर कर रहे हैं, तो उस समय बृहस्पति ने क्या की? उस स्थान को छोड़कर चले गए। देखो ये गुरु अवज्ञा होने के नाते, गुरु अवज्ञा समझते हो, डिसऑनर टू गुरुदेव। बस कुछ समय के बाद इंद्र के पतन हो गया। हमारे शास्त्र में लिखा है यदि गुरु अवज्ञा हो जाए तो सब उनके क्या हो जाएगा? सब नष्ट हो जाएगा। हैं? सब गए, उनके लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, धन, बस। यहां तक भी उनके स्वर्ग राज्य से उनको पतित हो गया, निकल। गुरु अवज्ञा की फल क्या है? वो इंद्र स्वर्ग राज्य से कहां आ गया? इस पृथ्वी लोक में आ गया। और पृथ्वी लोक में आया तो आया, और वो स्वर होकर जन्म लिया। स्वर समझते हो क्या? स्वर क्या है? बिग। अच्छा, तो इंग्लिश अच्छा है। स्वर होकर जन्म है, वाइल्ड पिग, ही से वाइल्ड पिग है, स्वर होकर उसके जन्म लिया है। अच्छा, हम अब एक बता दो, देखो जिस शरीर में हम आ जाते हैं उस शरीर के अनुसार हम आहार भोजन आदि करते हैं। ये बात सही है कि नहीं? ये देखो हमारे आत्मा अभी ये मनुष्य शरीर में आ गए, इसलिए मनुष्य को शरीर के उचित अनुसार हम भोजन करते हैं। और वही आत्मा गाय पशु पक्षी में चले जाए, उस पर भोजन करता है। गाय क्या खाती है? घास खाती है। और वही आत्मा शेर के शरीर में चले जाए, मांस है। हर मनुष्य की, हर प्राणियों की आहार भोजन अलग अलग है, और भगवान उसी प्रकार उसके निर्धारित करके रखा है। निर्धारित समझ लो, उसके उसी प्रकार रखा गया है। देखो गाय घास खाती है, मनुष्य हम क्या खाते हैं? घास खा है? हाँ भाई, कभी कभी मैं भी मजाक करता हूँ। आज वो सलाद बनाते हैं ना, क्या करते हो? सलाद बनाते हैं ना, क्या क्या घास फूस के को तो सोचते हैं चलो गाय तो खाती है, हम भी खा लग रहे ऐसे नहीं, पर इसमें विटामिन ज्यादा है। साग सब्जी कोई भी ना सलाद बना करके हम खाते हैं ना, हाँ बस अच्छा है कि नहीं? अच्छा लगता है कि नहीं लगता? बोले गाय तो हर रोज घास खाती है, हम 2-4 दिन खा लेते हैं, और 2 दिन हर रोज खाओ तो देखो आपके पेट में दुखते होंगे, बीमारी पड़ जाओगे। हम इसलिए मैं ये सब गीता में है, हम केवल तो आपके कहा रहा हूँ, सरल रूप में कह रहा हूँ, गीता में भगवान भी कहा गया हर प्राणियों की भोजन आहार स्वयं जो कुछ भी है सब कैटेगरी में रखा गया है। हम मनुष्य हैं, हम क्या भोजन करेंगे ये भी हमें विधान श्रीमद् भागवत गीता में 18 चैप्टर में इसको भी वर्णन कर दिया। जो कौन पशु क्या प्राणी क्या भोजन करेंगे इसके बारे में भी लिखा गया।
ऐसे नहीं है। गीता ऐसे शास्त्र है, समस्त प्राणी समूह के भी लिखा गया, केवल मनुष्य के लिए नहीं, सब अपने अपने जीवन धारण कैसे करें उसमें लिखा है। अच्छा चलो, मैंने किसने कहा समझ ओके। तो देखो इंद्र अभी किस शरीर में आ गया, याद है? सुअर शरीर में आ गया है। देखो हम जिस शरीर में आ जाते हैं उसी का अभिमान करते हैं। जैसे हम मनुष्य शरीर में आ गए, हम सोचते हैं हम क्या है, मनुष्य है। स्त्री शरीर में आ गए हम कहते हैं हम स्त्री है, पुरुष शरीर में आ गए हम पुरुष है। ये अभिमान अपने आप आ जाता है। दिस इज कॉल्ड फॉल्स इगोइज्म। ये अभिमान अपने आप आ जाए। गाय के शरीर में चले जाए वो सोचता है मैं गाय हूं। पशु के शरीर में जाए, पक्षी के शरीर में चले जाए उसी, और उसी प्रकार के भोजन आहार विहार आदि उसी प्रकार भी लगता है, जैसे मैं पहले कहा चुका। तो इंद्र अभी कौन सा शरीर में आ गया, सुअर शरीर में आ गया। तो सुअर सबसे अच्छा क्या लगता है खाने का? अभी आप बताइए आपके सबसे अच्छा क्या लगता है मनुष्य शरीर में आ गया? सूरीनाम में आप है ना, क्या लगता है आपके खाने का? तो बोले सारे बोल रहे अरे सबसे पहले पास्ता पिस्ता तो बोल रहे हैं। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? समोसा ये बोल रहे समोसा अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगे है। और व्यक्ति के रुचि एक नहीं है। सबसे अच्छा लोग ज्यादा कहोगे भाई है? ये बोलता है चावल दाल अच्छा लगता है इसको, जिसको जो अच्छा लगे। अच्छा चलिए, अच्छा सुअर के सबसे अच्छा क्या लगता है जानते हो आप? बोले जितने सड़ा गला है ना सुअर के अच्छा लगता है। जितने सड़ा गला है सुअर के वो अच्छा लगता है कि उसकी गंध जो है उसको अच्छा लगता है। इसलिए सुअर कहाँ रहना पसंद कहाँ पर करते हैं? जहां पर सड़ा गला हो, नाली उतने सुएज जिसको कहा जाता है, वहां पर उसका अच्छा लगता है। इंडिया में हम रहते हैं ना भाई, मैं सच कहता हूँ, हमारी मंदिर जो है मथुरा में, मंदिर के बिल्कुल पीछे सुएज नाली है। शहर के सारे जो है गंदी नाली निकलते हैं, वहां से कम 100-150 जो है सुअर आपको मिलेगा। हाँ, वो आनंद से सो जाते हैं। और उनके बाल बच्चा कितने होते हैं? एक जो सुअर के कम से 20-25 होता है। हमें पता नहीं आपके एक है कि नहीं है। और सुअर के एक साथ में कितना होता है? कम से कम 15-20 तो जरूर होगा, और सब घूमता है। अच्छा चलो, वो इंद्र आदि सुअर होकर जन्म लिया। तो भाई देखो ये भी बात है अपोजिट सेक्स को अपने आप मिल जाता है। सुअर होकर जन्म लिया तो सुअर ही मिल जाएगा, ये निर्धारित है। आप ग्रहण करें मतलब, देखो आप मनुष्य हो गया तो मनुष्य मिल जाएगा आपको। आप शादी करें ना करें दूसरी बात है, किंतु ये सब पूर्व निर्धारित है। जेंट्स है तो क्या बोले, लेडीज मिल जाएगा आपका, चिंता मत करो। बोले मेरे तो शादी नहीं हो रहा है, कोई कहते हैं महाराज आप बताइए मेरा हाथ देख करके और मेरा शादी कब हो। बताते हैं मुझे, मैं शादी फादी जना नहीं जानता, मैं तो शादी के मैं मानता हूँ क्या बर्बादी करते हुए। भाई दुखी है। तुम जाना चाहते करो, हमें क्या करना है? माना थोड़ी करेंगे, और माना करके थोड़ी तुम मानोगे। मैं तो जानता हूँ शादी क्या है, बोलो वृंदावन बिहार है। किंतु सुअर में तो कोई शादी फादी कराते नहीं है ना, वो करते हैं। चलो उसके क्या हो गया, सुअर सुअरी के साथ रहेंगे, और इसके बाद उसके 2-4 कितने बच्चा हो गया मैं बताया था। हाँ। और आनंद से सुअर सुअरी उनके बच्चे के साथ जब चलते हैं ना, हाँ बहुत आनंद है। देखे होंगे शायद आप लोग, एक सुअरी जब चलती है उसके पीछे 8-10 छोटे-छोटे बच्चे जो फुदुक करके देखे होंगे। सुअर सुअरी कितने आनंद है।
भाई देखो सुअर सुअरी चल रही है, उनके पीछे 15-20 जो है बच्चे जो है घंट घंट घंट। देखो कहां स्वर्ग के राजा इंद्र और कहां सुअर, और कैसे गंदी स्थान में रहा है? कहां अमृत भोजन। स्वर्ग की वर्णन है, स्वर्ग के जो है देवता लोग, इंद्र आदि देवता लोग क्या भोजन करते हैं? अमृत भोजन, नंदन कानन। जिनकी पत्नी क्या है? सची देवी इंद्राणी, कितने सुंदरी है, सती साध्वी है। और इधर आकर के सुअरी के साथ और गंदी नाली में पायखाना बीसा, उसी को मान रहे हैं क्या? मैं डांडव गद्दी में बैठा। देखो इसी प्रकार चलते जा रही है। एक दिन ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी, मन में दया हुई, देखा कहां इंद्र के राजा और कहां नाली की सुअरी होकर के सुकर होकर के सुअरी के साथ कैसे करें, इसे उद्धार करना। इसलिए ब्रह्मा जी आकर के उनको बताया, हे यू आर नॉट पिग, आप सुअर नहीं हो। है क्या बोले है? कहां से झूठ मूठ कहां से बोलते जा रहे? जैसे मैंने आप कहा दिया, ये आप ये नहीं हो, है? आप इस जगत के लोग नहीं हो, आप तो उस जगत के ही है। चलो बैक टू गॉड, बैक टू होम। जाओगे आप? महाराज क्या पागल है क्या? कहां क्या बोलते हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं? पर ब्रह्मा जी उनको समझाया, पहले बहुत करके समझाया, देखो तुम सुअर नहीं हो, तुम इंद्र हो, है? चलो मेरे साथ। पर नहीं, देखो मेरा पत्नी कितनी सुंदरी है, मेरे बाल बच्चा देखो 15-20 बाल बच्चा कितने सुंदर, मैं भोजन करता हूँ, इधर पर टैक्स देना नहीं पड़ता है, कुछ देना नहीं पड़ता है। समझ में आता है? आपको टैक्स देना पड़ता है ना, सरकार टैक्स देना पड़ता है, और नगरी करो वैसे बस आपके 40% सरकार तो टैक्स लेगी, और यहाँ पर कुछ टैक्स देना नहीं है, बस प्रातः काल में ताजा ताजा अपना मिल जाता है। समझ में आता है कि नहीं? ज्यादा करो तो आपके खाने के समय याद आ जाएगी। हाँ भाई, सुअर जो है प्रातः काल में वहां पर चले जाते हैं जहां पर लोग ताजा ताजा छोड़ करके आ जाता है। बिहारी लाल ब्रह्मा जी बोला, अरे मूर्ख, अरे तुम सुअर नहीं हो, तुम इंद्र हो। जितने भी भागवत के गीता की कथा सुना दिया, 7 दिन गीता की भागवत 7 सुना दिया, उनके कुछ समझ में नहीं है? मैं एक बार रामायण पाठ कर रहा था, रामायण में कथा सुना था, 9 दिन रामायण कथा सुनाए। 9 दिन रामायण कथा सुनाने के बाद मैंने एक व्यक्ति खड़े हो गए, मैंने कहा बताओ। बोले महाराज एक प्रश्न पूछूं? मैंने पूछो। अच्छा ये बात बताओ महाराज, मैं रामायण तो सुना, आपसे सब कुछ सुन लिया, इसमें मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं, इसमें असुर कौन था? रावण था कि राम था? मैं 9 दिन रामायण कथा सुनाया, वो मुझे ये प्रश्न पूछा, ये महाराज ये प्रश्न ये बताइए, ये रामायण में असुर कौन था, राम था कि रावण था? ये मेरे समझ नहीं है। मैंने कहा देखो, ना रावण था ना राम था, मैं ही था। तुम जैसे व्यक्ति को मैं इतना दिन सुनाया, तुम्हारे सिर पर कुछ नहीं है, मैं ही था। क्या तुम 7 दिन रामायण, 9 दिन रामायण सुना, ऐसे लोग होते हैं। अर्थात मतलब कि वो सुना ही नहीं कुछ लोग सुनता नहीं है, कुछ प्रश्न करना है। अच्छा बताओ, किसने सीता को चोरी किया? राम ने किया कि रावण ने किया?
हाँ भाई, ये सत्य घटना मैं बता रहा हूँ। एक जगह में रामायण में 7-9 दिन रामायण कथा सुनाया, बहुत धूमधाम से कथा हुई, बहुत कुछ हो गया, सीता विवाह हो गया, जो रामायण में चलते है ना, अच्छी तरह से दिखा दिया, वो भी हमारे स्लाइड चलते रहे, दिखा। और अंत में 9 दिन के बाद वो खड़े होकर के बोले, महाराज ये बताओ इसमें असुर कौन था? रावण था कि राम? और सीता को किसने चोरी किया? राम ने चोरी किया ना रावण ने? जाता है। देखो, कथा सुनने वाले 3 प्रकार लोग होते हैं, श्रोता करते हैं। हम की कथा में बताते हैं, एक होता श्रोता होता है, एक होता श्रोता होता है, और एक होता है सरोता होता है। पता नहीं, एक श्रोता है जो श्रवण करते हैं, उसके कहा जाता है श्रोता कहा जाता है, और एक होता है श्रोता। श्रोता समझते हो? पीछे आगे उसके कहा जाता है क्या? और एक होता है सरोता। भाई हिंदी में होता है ना सरोता। सरोता किसे कहते जानते हैं हिंदी में आप लोग? सुपारी कटने वाले एक होता है, उसे कहते हैं सरोता कहा जाता है। हमारे ब्रज की कथा में हिंदी में भी कहा जाता है सरोता। जो है सुपारी है ना, पान में सुपारी लगाते हैं ना, उसको काटने वाले ऐसे होता है, उसे कहा जाता है सरोता। अर्थात तात्पर्य क्या है, कुछ लोग आते हैं वास्तव को सुनने के लिए नहीं आते हैं, वो पीछे बैठ जाता है और पीछे बैठ करके एक जपमाला हाथ में ले लेते हैं और इधर बकते रहे, वो पीछे वो अपने प्रवचन शुरू कर देते हैं। वो पीछे बैठ करके अपने प्रवचन शुरू कर देते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा बताओ, काल संत महात्मा के काल जो भोजन दिया था ना, ये कथा में हम देखो, हमारी इंडिया में कथा होती है ना, भागवत कथा होती है ना, मैं बता देता हूँ। वहाँ पर हर रोज जो है कथा के बाद सबको प्रसाद दिया जाता है, लड्डू कचौड़ी जो कुछ भी है, मिठाई जो दिया जाता है। वो जब हमारा हाथ लेकर पीछे बिल्कुल पीछे बैठ जाते हैं और उनके आमने सामने बोलते थे, काल तो हाँ वो प्रसाद तो अच्छा था, ज्यादा और कोई कहता है कथा तो मीठा क्या बोले प्रसाद तो ठीक था, उसमें नमक कम था। बस उसी कथा में वो लग जाता है और यहाँ पर क्या कथा बोल रहे हो बताइए नहीं। फिर जब 7 दिन से कहेंगे भाई हम कथा सुने, तो खड़े हो जाते हैं। वो प्रश्न करते हैं, महाराज भागवत में आप बोले तो इसमें भागवत में कौन किसको कथा सुनाया आप बताओ। चलो आगे की कथा में समाप्त करता हूँ। ब्रह्मा जी शुक्र भी इंद्र के बोले, अरे तुम शुक्र नहीं हो, सुअर नहीं हो, किंतु सुनने वाला नहीं है। जितने भी कथा सुना दे, कहाँ सुनने वाला है? तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे, इसको थोड़ा कृपा कर देता हूँ। ये आसक्ति किसमें है? ये छोटे छोटे बच्चा में। तो ब्रह्मा जी ने क्या की, अपने कमंडल से पानी लिया, मंत्र पुट करके छोटे छोटे बच्चे के ऊपर छोड़ दिया, और देखते देखते तिलगड़ाते उसके सारे बच्चा लुढ़क गए। माने हाँ तुम्हारे बच्चा को मार दिया। भाई सुअर क्या करने लगे, ब्रह्मा जी बतौने लगे। ब्रह्मा जी थोड़ा पीछे हट गए, फिर कहने लगे, अरे तू छोड़ दे, मेरे साथ चल। बोले नहीं मेरा पति, ठीक है तू मार दिया तो कोई बात है, थोड़ी 6 महीने के बाद हमारे पत्नी जो है और 25 बच्चा पैदा कर देंगे। अच्छा, तो ब्रह्मा जी ये अभी तो आपकी पत्नी के ऊपर आ सकती है। फिर ब्रह्मा जी ने पानी लिया कमंडल से, थोड़ा मंत्रपुत करके सुअरी के ऊपर छोड़ दिया। तो सुअरी जब लुढ़क गए, हाँ तुम्हारे अच्छा कोई बात नहीं, एक सुअरी चले गए, फिर दूसरी साल और 30 सुअरी मिल गया। पत्नी चली गई तो क्या हो गया, और एक पत्नी मिल जाएगा। अच्छा ये तो मानने वाला नहीं। तो ब्रह्मा जी ने क्या की, थोड़ा फिर पुनः जो है कमंडल से पानी लिया और मंत्र जप करके वो सुअर के ऊपर छोड़ दिया। जब सुअर के ऊपर छोड़ दिया, सुअर के शरीर है ना, ये शरीर चला गया और देखा क्या उनके सुंदर रूप, जो इंद्र शरीर जो है, इंद्र शरीर निकल करके आ गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करके प्रणाम करके परिक्रमा करने लगे। कहले मैं कहाँ था? बोले तुम यही शरीर, स्वर रूपी शरीर में तुम वृंदावन विहार है। तात्पर्य क्या है?
ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा इस शरीर में रह रही है। ये संत महात्मा उसे क्या कहते हैं? उसके जगाते हैं। उत्तिष्ठ जग पप्पु वरुण निबुधात पृष्ठ धारा निषुद्धरुत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उपनिषद में ही कहते हैं, उठो जागो, अपने आत्मा के जगाओ। आपके आत्मा सो रही है, उसके जगाओ। है एक व्यक्ति सो रही है, उसके कैसे जगाना है आप बताओ? हिला हिला करके। हाँ भाई, एक व्यक्ति जब गाढ़ निद्रा में डीप स्लीप, उसको कैसे जगाओगे? उसके जवाब ओठो ओठो हिलाओ हिला करके। माता जी कह रहे हैं, बात सही है। जब तुम हिलाओगे नहीं ना, वो जगेगी। जोर से चिल्लाओ और हिलाओ। भाई हमारी उसी प्रकार आत्मा जगाने के उपाय हमारे चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? जोर से हरिनाम करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही है कहते जीव जागो गोरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाची बोले। তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার, আমি বড় বন্ধু বল কে আছে তোমার। নেছি ঔষধি মায়া নাসিবার লাগি, হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি। এই হরিনাম, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম राम राम हरे हरे। इसलिए यही गीता की सार है, भगवान के नाम जप करें, यही सार। अगली कथा बताएं, कल आपको भी जाना है ना, है इसलिए कह रहे हैं जल्दी महाराज समाप्त कर दो। मैं सारा रात बोलते रहूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन महाराज की जय, काशीनाथ की जय, सावध भक्त की जय, गौर ब्रह्मचारी हरि हरि बोल। Zo, beste mensen, we hebben vandaag de eerste verdiepingssessie achter de rug, waarbij ik getracht heb om jullie kort een samenvatting te geven over de Gita. En mijn Gurudev heeft een paar hele mooie voorbeelden aangeraakt en toegelicht, waardoor we meer bewust worden van dat wij een adres hebben. Een adres is gerelateerd aan Bhagwan zijn huis. Maar hoe komen we daar? Op welke manier? Hoe kunnen we een adres terugvinden en hoe kunnen we daar opgenomen worden? Dat is wat we komende 3 dagen uitgebreid zullen vertellen hoe het proces werkt. En mijn politie zal elke avond komen om een verder diepgaande toelichting te geven. Ik dank u allemaal. Probeer deze 3 dagen wat we georganiseerd hebben. We hebben zoveel moeite gedaan om van Nederland helemaal hier te komen. En voor jullie is het misschien even of maximaal een half uurtje om hier te komen. Probeer die 3,5 uurtje ook te waarderen, dat jullie hier kunnen komen, dat we hier zijn, door aanwezig te zijn. En deze waarde van kennis, schat van kennis, tot je te doen. En jullie zullen zien hoe voorspoed jullie leven zullen invullen door alleen maar te luisteren. Het is een cadeau wat jullie krijgen en probeer het serieus te nemen door aanwezig te zijn met andere woorden. Kort als afsluiting, degenen die het Bhagavad Gita seminar hadden gevolgd afgelopen week, daar was een persoon die de Gita's heeft gedoneerd. En er kwamen een aantal mensen, degenen die het seminar hebben gevolgd, die hebben hun e-mailadres en namen genoteerd. Vanaf morgen is het mogelijk om 3 dagen lang de Gita op te halen. Dus meld je dan even, als je naam vorige week genoteerd is, dan krijg je de Gita vanaf morgen tot en met donderdag kan je die dus ophalen. En daarna komen er verschillende locaties waar je het kan ophalen, maar deze 3 dagen zal het alleen hier zijn. De Gita was op verschillende locaties, dus daarom hebben we hem niet vandaag hier, maar vanaf morgen dus wel. Er wordt gesproken, er wordt altijd gezegd Harikatha, Hari Anand. En je merkt het ook, Guruji is gewend om eigenlijk uren Bhagavad Gita te spreken. Vijay Guru is gewend om in Nederland uren seminars te spreken en iedereen is heel aandachtig aan het luisteren. We doen ons best om het zo passend mogelijk te maken voor jullie. Maar je merkt, vergeef ons als het iets uitloopt. Maar deze kennis is echt, het is eigenlijk onbetaalbaar. En het is echt heel erg zeldzaam. Dus we hopen ook dat jullie het kunnen waarderen. En als het iets uitloopt, vergeef het ons. Na 4 dagen kan je alles in alle rust, alles verteren, alles opnemen. Maar pak deze 4 dagen die echt uiterst zeldzaam zijn,
om je eigen voordeel ermee te doen. Wel thuis allemaal. Super bedankt voor jullie